بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن و مسلین اما بعد۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی ہے فقہیات زکوٰۃ۔ اگر ایک خاتون اپنا سونا اپنے بچوں اور بچیوں میں تقسیم کر دے تو کیا اس سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ یہ ہے سوال۔ جن گزشتہ سالوں کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ان سالوں کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی پڑے گی، وہ ساقط نہیں ہوگی۔ البتہ بچوں اور بچیوں میں سونا تقسیم کرنے کے بعد اگر ہر ایک کے حصہ میں 7.5 تولہ سے کم آتا ہے اور ان کے پاس دوسرا سونا نہیں ہے جن کو ملا کر 7.5 تولہ ہو جائے اور اس خاتون نے انہیں اس کا بالکلیہ مالک بنا دیا ہے، صرف بطور ہیلہ نہ دیا ہے، تو ان سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ صرف ہیلہ سازی کر رہی ہے اور حقیقت میں انہیں ہبہ نہیں کیا ہے تو بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی اور وہ اس ہیلہ بازی پر بھی گنہگار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور اس واسطے ہیلہ سازی بیکار ہے کیونکہ کوئی بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں۔ اس کے بعد میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب کہتے ہیں میری بیوی کے پاس کچھ زیورات ہیں، ان کی زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے یا میری بیوی پر؟ جو ان زیورات کا مالک ہوگا اس پر ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ دوسرا تطوعاً اس کی طرف سے نکال دے تو کوئی حرج نہیں، جیسے اس کی طرف سے قرض ادا کرنے سے ادائیگی ہو جاتی ہے ایسے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کے ذمے قرض ہے اور اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ زیورات میں ہر سال زکوٰۃ ہے، جو زیورات نصاب تک پہنچ گئے ہوں ان پر ہر سال زکوٰۃ ہے، الا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ نصاب سے کم ہو جائیں۔ گھر بنوانے، حج کرنے اور بچوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے روپیوں میں زکوٰۃ ہے۔ یہاں یہی سوال کیا گیا ہے کہ ان میں زکوٰۃ نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ کہتے ہیں ہاں، ایسے روپیوں پر بھی جب تک اس شخص کے پاس موجود رہیں گے زکوٰۃ واجب ہے اور ہر سال ان کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے حج کے لیے روپے جمع کر رکھا ہے یا شادی کے لیے جمع کیا ہے یا اس طرح کسی اور کام کے لیے جمع کر رکھا ہے اور یہ روپے نصاب کو پہنچ گئے ہیں اور نصاب مکمل ہونے کے بعد 1 سال گزر گیا ہے تو ان کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جب نصاب پورا ہو جائے گا وہاں سے پھر حولان حول شمار کیا جائے گا اور جہاں سال پورا ہوگا وہاں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ قیمتی پتھروں اور ہیرے جواہرات میں زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہوں۔ تو جن کے پاس ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ان کی تجارت کے لیے ہے تو پھر زکوٰۃ آئے گی، عروض التجارہ اور سامان تجارت کے ضمن میں۔ قیمتی پتھروں اور ہیرے و جواہرات کے زیورات اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے، جیسے دیگر اموال تجارت میں زکوٰۃ ہے،
اور اگر گھر میں عورتوں کے استعمال کے لیے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جائیداد غیر منقولہ پر زکوٰۃ۔ جائیداد غیر منقولہ جیسے پختہ مکان، دکانیں وغیرہ کی ہزارہ روپیوں کی ملکیت ہے، لاکھوں روپے کی ملکیت ہے، ان کے مالکان کے ذمے ان کی سالانہ زکوٰۃ ان کی قیمت لگا کر ادا کرنی ہوگی یا کرائے کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نیز اگر کرایہ کی رقم کھانے پینے اور دیگر حوائج ضروریات پر صرف ہو جائے تو جائیداد کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اس قسم کی جائیداد کی مالیت اور قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں، مشین پر زکوٰۃ نہیں، ٹرک پر زکوٰۃ نہیں، ٹرین میں زکوٰۃ نہیں، جہاز میں زکوٰۃ نہیں، ان کی آمدنی میں زکوٰۃ آئے گی، صرف اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اگر حاصل شدہ کرایہ میں سے مالک جائیداد کے خرچ کرنے کے بعد اتنا بچ جائے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس پر حولان حول یعنی پورا 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ کرائے پر دیے جانے والے مکانات اور دکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف ان کے کرایہ اور آمدنی پر زکوٰۃ ہے، اور یہ کرایہ اور آمدنی اگر مالک کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات پر صرف کرنے سے ختم ہو جاتے یا جو بچے وہ نصاب زکوٰۃ تک نہ پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ تجارتی مکانات، دکانوں اور اراضی کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو مکان تجارت کے لیے ہیں، جو دکان تجارت کے لیے ہیں یا زمین تجارت کے لیے ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ کارخانہ، بس اور ٹرک پر زکوٰۃ کا حکم۔ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یعنی جس کشتی کو حضرت خضر نے عیبدار کیا وہ ان مساکین کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ کشتی کافی قیمت کی ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مساکین کہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آمدنی تھوڑی اور ان کے گزر اوقات کے لیے کافی نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے ذرائع، کارخانہ، مکان، لاریاں اور آلات وغیرہ کی مالیت خواہ کتنی بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے لاکھوں میں ہو، اربوں میں ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی آمدنی نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ان ذرائع و آلات کی تجارت کی جائے، گاڑیوں کی تجارت، ٹرکوں کی تجارت، کارخانے، تو پھر یہ مال تجارت سمجھے جائیں گے اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی سال پورا ہونے کے بعد۔ تجارتی پلاٹ و زمین پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک شخص پلاٹ کا کاروبار کرتا ہے، اس طرح کی کچھ زمینیں خریدتا اور ان کی پلاٹنگ کر کے پلاٹس بیچ دیتا ہے، پھر دوسری زمین خریدتا اور اس کی پلاٹنگ کرتا اور فروخت کرتا ہے، سال بھر اس کا یہی کاروبار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کے جو پلاٹس اور زمینیں ہیں ان کی قیمت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں اس شخص کے پاس جو پلاٹس اور زمینیں ہیں وہ تجارت کے لیے ہیں اور ان کی حیثیت اموال تجارت کی ہے، اس واسطے جیسے دیگر اموال تجارت کی قیمت پر تکمیل نصاب کے بعد اگر حولان حول ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح ان پلاٹوں اور زمینوں کی قیمت پر بھی اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی ہے تو حولان حول کے بعد
ज़कात वाजिब होगी। बेचने की नीयत से खरीदी गई जमीन पर ज़कात है। एक साहब ने खेती की एक जमीन दाम चढ़ने की नीयत से खरीदी है, मगर अभी कीमत में मुनासिब इजाफा नहीं हुआ है, इस वास्ते उसमें फिलहाल खेती करने का इरादा है। फिर जब दाम बढ़ेगा तो फरोख्त कर देंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो उसकी कीमत पर ज़कात निकालें या पैदावार पर उश्र दें। तो चूंकि इन्होंने इस जमीन को तिजारत की नीयत से खरीदा है, इस वास्ते ये माले तिजारत के हुक्म में है और इस एतबार से इसकी मौजूदा कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर उसमें खेती किया और निसाब तक गल्ला की पैदावार हुई तो उसकी ज़कात उश्र या निस्फ़े उश्र भी देनी पड़ेगी। जैसे दुकान में मौजूद माल तिजारत की मौजूदा कीमत के हिसाब से ज़कात निकाल देते हैं और बाद में नफ़ा होता है तो उसकी ज़कात भी देते हैं। या तिजारत की नीयत से खरीदे हुए फ्लैट को 1 साल के लिए किराया पर दे दिया और किराया ज़कात के निसाब को पहुंच रहा हो तो हौलाने हौल के बाद उसकी भी ज़कात देना पड़ेगी। इसी तरह का मामला यहाँ भी है। जमीन की ज़कात का मसला, हमने एक जमीन खरीदी है तो क्या उस पर ज़कात है? अगर ये जमीन आपने खेती के लिए या उस पर बाग लगाने के लिए खरीदी है या उस पर रहने के लिए घर बनाने का इरादा है या दुकान बनाकर उसमें कारोबार करने या किराया पर देने की नीयत है तो इस पर ज़कात नहीं है। और अगर इसको नफ़ा पर फरोख्त करने या इस पर घर या दुकान बनाकर बेचने की नीयत है तो उसकी फिलहाल जो कीमत हो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात है, चाहे पहले से सस्ती हो या महंगी हो गई हो या वही रेट अभी तक हो, क्योंकि राजिह कौल के मुताबिक अमवाले तिजारत पर ज़कात है। जैसा कि हजरत समुरा बिन जुंदुब से रिवायत है, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यामुरुना अन नुखरिज सदक़ता मिनल लज़ी नुइद्दु लिल बैइ, रवाहु अबू दाऊद। सुनने अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 212, किताबु ज़कात, बाबुल अर्द इज़ा कानत तिजारा, वक़ाल अल-अलबानी ज़ईफ़, उन्जुर अल-इरवा, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 315। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज़कात निकालने का हुक्म देते थे जिसको हम फरोख्त करने के लिए रखें। इसकी सनद में अगरचे कुछ कलाम है मगर इसकी तायीद दूसरी अहादीस, जुमहूर के इजमा और आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम से होती है। ये सूरे बकरा की आयत है, आयत नंबर 267। दुकान में मालिक के पास 1 लाख का माल है तो क्या इसमें भी ज़कात है? अगर दुकान में 1 लाख का माल है तो चूंकि माल तिजारत में ज़कात है और ये निसाब ज़कात तक पहुंच गया है, इस वास्ते अगर इस पर हौलाने हौल हो चुका हो तो ज़कात निकालना वाजिब है। और ज़कात निकालते वक्त दुकान में मौजूद माल की कीमत के साथ जो रकम नकद की शक्ल में है, इसी तरह जो दूसरे के पास बतौर कर्ज है उनको भी जोड़ा जाएगा। और अगर मालिक दुकान के जिम्मा दूसरों का कुछ कर्ज है तो उसको वज़ा कर दिया जाएगा। यहाँ इन्होंने ये पूछा है कि दुकान के माल में आदमी का अपना 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया ठीक है, जब साल गुजर जाएगा तो उसमें से ज़कात देना होगी।
इन्होंने जो कर्जे दिए हैं तो उसको भी शुमार किया जाएगा, और इन्होंने जो कर्ज माल लिया है, तिजारत में तो ये चलता ही रहता है, इनका माल अपना कर्ज में जाता है, ये दूसरों से कर्ज लेते हैं, तो दूसरों से जो कर्ज लिया है वो अपने असल माल से उसको मिन्हा कर दिया जाएगा और उसको घटा करके फिर ज़कात निकाली जाएगी। हमने 2 फ्लैट अपने 2 लड़कों के लिए खरीदा है और नीयत यही थी कि शादी के बाद वो उसमें रहेंगे, मगर अभी तक वो हमारे साथ ही रहते हैं और उन फ्लैटों को हमने किराए पर दे दिया है, तो क्या इन फ्लैटों पर ज़कात है? कहते हैं अगर आपका बयान दुरुस्त है और वाकई दोनों फ्लैटों को अपने बच्चों के रहने के लिए ही खरीदा है, अच्छी कीमत मिलने पर बेचने के लिए नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में उनकी कीमत पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता आप उन्हें किराए पर देकर जो रकम हासिल करते हैं, अगर वो रकम निसाब को पहुंच जाती है और फिर उस पर 1 साल भी गुजर जाता है, तो उस पर 2.5% के एतबार से ज़कात है, और अगर वो घर के इखराजात में सर्फ हो जाती है और साल भर आपके पास नहीं रहती, तो उस पर ज़कात नहीं है, इल्ला ये कि आपके पास दूसरे ज़राए की आमदनी से निसाबे ज़कात मौजूद हो, तो जो कुछ रकम में से बचे उससे उस रकम के साथ शामिल कर लिया जाए। यहाँ पर इन्होंने सवाल किया है कि हमारे पास गैस एजेंसी है जिसमें हजारों गैस के सिलेंडर्स हैं, हम उन सिलेंडर्स में भरकर गैस फरोख्त करते हैं, सिलेंडर्स नहीं, इस वास्ते दोबारा जब ग्राहक गैस लेने आता है तो उससे पहले वाला सिलेंडर वापस लेकर दूसरा भरा हुआ सिलेंडर उसे दे देते हैं और सिर्फ गैस की कीमत लेते हैं। ऐसी सूरत में सवाल यह है कि हमारे पास जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी ज़कात भी देनी पड़ेगी या नहीं? तो इसका जवाब ये देते हैं, आपको इन गैस सिलेंडर्स की ज़कात नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है, और जो सामान बेचने के लिए ना हो बल्कि किराए पर देने या घर या दुकान में इस्तेमाल के लिए हो, उन पर ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ अमवाल तिजारत में है, यानी जिन्हें बेचने के लिए रखा है, इनमें ज़कात नहीं है, यानी ये जो गैस सिलेंडर्स हैं इसमें ज़कात नहीं है। अब वो जो कारोबार कर रहे हैं और उसका जो पैसा आता और जाता है, वो साल पूरा होने के बाद, निसाब पूरा होने के बाद, और उसमें ज़कात आएगी 2.5%। मुज़ारबत के तरीके पर दी हुई रकम में ज़कात कब है और कैसे है? कहते हैं एक शख्स ने अपने कुछ रुपए एक दूसरे आदमी को मुज़ारबत के तरीके पर कारोबार के लिए दिया है। 2 आदमी हैं, एक ने पैसा लगाया, दूसरा काम करता है और मुनाफे तय हैं, या तो आधा आधा या 60 और 40। जिसने पैसा दिया वो 60% लेगा, जिसने जो काम कर रहा है आमिल यानी मुज़ारिब वो 40% लेगा, जैसे इत्तेफाक हो जाए। कहते हैं साल भर हो गया मगर अभी कुछ हिसाब नहीं दिया है, तो इसकी ज़कात कब और कैसे दे, कैसे निकाली जाएगी? तो इसका जवाब देते हैं कि इसको चाहिए कि अपने पार्टनर को कहकर कारोबार का हिसाब करे। अगर कुछ नफ़ा हुआ है तो वो अपनी असल पूंजी और अपने हिस्से के नफ़ा को मिलाकर देखे। अगर वो निसाब को पहुंच गया है तो उनकी ज़कात निकाल दे, क्योंकि आपके बकौल उस पर साल गुजर चुका है, और अगर निसाब को नहीं पहुंचा है तो उस पर ज़कात नहीं है। और इसका पार्टनर भी अगर निसाब का मालिक है तो उसके साथ नफ़ा को जम करके उनकी ज़कात निकाल दे, और अगर वो निसाब का मालिक नहीं है तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है।
यहाँ ये सवाल किया गया है कि एक शख्स का सरमाया कई लोगों के पास है, उसका पैसा, उसकी रकम, अगर सबको जोड़ें तो उसकी रकम निसाब तक पहुंचती है, और अगर सबको जमा न करें तो एक जगह की रकम निसाब तक नहीं पहुंचती। तो क्या इसके ऊपर ज़कात वाजिब है? कहते हैं हाँ, इस शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब है, क्योंकि सारे लोगों के पास जो उसकी रकमें हैं वो उसी की हैं और उनका मजमुआ निसाब को पहुंच गया है और हौलाने हौल भी हो चुका है, इसलिए ज़कात भी वाजिब होगी। यहाँ एक सवाल ये है कि एक ज़मीन मैंने दुकान बनाने के लिए खरीदी थी, मगर अचानक एक शदीद ज़रूरत की बिना पर उसे मुझे बेचनी पड़ी। तो कहते हैं कि बेचने के बाद गुजरे हुए सालों की ज़कात देनी होगी या नहीं। जब उस ज़मीन के खरीदते वक्त नीयत बेचने की नहीं थी बल्कि दुकान बनाने की थी, तो अचानक किसी ज़रूरत की बिना पर बेचने की वजह से गुज़िश्ता सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होंगी, क्योंकि इन सालों में बेचने की नीयत नहीं थी। ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों में ज़कात नहीं है। जिन चीज़ों को हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, गाड़ी है, बड़ी गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ, तो इनमें ज़कात नहीं है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ली गई मोटरसाइकिल पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल का शोरूम हो और उसमें बेचने के लिए मोटरसाइकिलें हो या दूसरी बड़ी गाड़ियां हो, छोटी गाड़ियां हो, तो अमवाले तिजारत की तरह उनकी कीमत पर हौलाने हौल के बाद 2.5% ज़कात वाजिब होगी। यहाँ पर अब हम जो बातें जिक्र कर रहे हैं, ये ज़मीन से जो चीज़ें पैदा होती हैं और निकलती हैं उनकी ज़कात के सिलसिले में। यहाँ उन्वान है, सिर्फ 4 गल्लों में ही ज़कात नहीं। बाज़ उलमा का कहना है कि उश्र सिर्फ 4 चीज़ों, गेहूं, जौ, खजूर और किशमिश में है। क्या इनका कौल सही है? कहते हैं कि इनका कौल सही नहीं है, मरजू है, क्योंकि दलील में जो हदीसें वो पेश करते हैं वो मुरसल, मुनक़ते या इंतहाई कमज़ोर होने की वजह से नाकाबिले इस्तिदलाल है। और कुरान और हदीस, कुरान और सही अहदीस के उमूम की इन ज़ईफ़ हदीसों से तख़सीस नहीं हो सकती। यानी जो मुआरिज़ हदीसें हैं वो सब ज़ईफ़ हैं और जो मुकाबिल की हदीसें हैं वो सही हैं, और कुरानी आयत, तो इन ज़ईफ़ हदीसों के ज़रिया उनकी तख़सीस नहीं की जा सकती। इस वास्ते इमाम दाऊद ज़ाहिरी फरमाते हैं कि ज़मीन से पैदा होने वाली हर चीज़ जो आमदनी का ज़रिया है हो, उसमें ज़कात वाजिब है। और जिन चीज़ों में नाप तौल जारी होता है, जिनको नापते हैं, तौलते हैं, उनमें वजूबे उश्र के लिए निसाब शर्त है, और जो नापी तौली नहीं जाती उनमें निसाब शर्त नहीं। गुरबा की ज़रूरियात और उमरा के तज़किये नफ्स व माल के पेशे नज़र भी यही मज़हब अहवत और राजिह मालूम होता है। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने भी वहाज़ा नौ मिनल जमा कहकर इसकी तरजीह की तरफ इशारा किया है। शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी रहमहुल्लाह ने मिरातुल मफाती और फतावा शेखुल हदीस मुबारक पूरी में इसे राजिह और अक़वा करार दिया है। और मुअल्लिफ अत्तालिकातुस सलफ़िया अला सुननी नसई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 281 का भी इसी तरफ रुझान है। देखिए फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 55-56। तो यहाँ कहने का मतलब यही हुआ कि ज़मीन की जो पैदावार है सिर्फ 4 ही में नहीं है,
बल्कि दूसरी में भी है और उसकी तफसील अभी आगे आएगी। खेतों की पैदावार के सिलसिले में ये पूछना है कि कुछ फसलें साल में 2 मरतबा पैदा होती हैं, तो क्या जब जब फसल पैदा होगी उसकी ज़कात निकाली जाएगी या साल में सिर्फ 1 मरतबा? खेतों की पैदावार में जब फसल कटे और गल्ला या खजूर वगैरह निसाब को पहुंच जाए तो उसकी फौरन ज़कात निकालना पड़ेगी, ख्वाह ऐसा 2 मरतबा हो या 3 मरतबा। इसमें हौलाने हौल की शर्त नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है वातु हक़्क़हु यौम हसादिही, इसकी ज़कात उसके कटने के दिन ही निकाल दो। इसके बाद कहते हैं कि एक आदमी तिजारत करता है और काश्तकारी भी, तो क्या वो पहले खेत से पैदा होने वाले गल्लों का उश्र व ज़कात निकालेगा, फिर बाकी को बेचकर अगर उसने पैसे तिजारत में लगाए तो माले तिजारत की ज़कात निकालते वक्त उसकी ज़कात भी निकालेगा, या गल्लों का पहले उश्र निकालना ज़रूरी नहीं और उन्हें बेचकर वो पैसे तिजारत में लगा सकता है, और जब तिजारत में लगे पैसों वगैरह की ज़कात दे तो उनके साथ उस रकम की ज़कात भी दे देगा? ये सवाल है। जवाब में कहते हैं आयत करीमा वातु हक़्क़हु यौम हसादिही की बिना पर जैसे फसल कटने के बाद घर पर आएगी, ज़ैद उसका उश्र या निस्फ़े उश्र निकाल देगा, फिर बाकी चाहे बेच दे या घर में इस्तेमाल करे, और अगर बेचकर तिजारत में लगाया तो जब उस पर हौलाने हौल हो जाएगा तो उसकी फिर ज़कात निकालेगा। गर्दे की खेतों की पैदावार का उश्र फसल कटने के बाद ही निकाल देंगे, उनका तिजारत के माल से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ एक अहम मसला ये भी है कि क्या हिंदुस्तान की ज़मीन खराजी है और यहाँ जो हम लगान अदा करते हैं तो लगान अदा करने की वजह से हम ज़कात देंगे या ज़कात नहीं देंगे? कहते हैं राजिह कौल के मुताबिक किसी ज़मीन का सरकारी लगान देने की वजह से उसकी पैदावार से उश्र वो ज़कात साक़ित नहीं होगी। इसी तरह खराजी ज़मीनों के सिलसिले में भी राजिह यही है कि उसकी पैदावार में उश्र ज़कात है और टैक्स व खराज की वजह से उश्र ज़कात साक़ित नहीं होंगे, क्योंकि आयत कुरानिया और अहादीस नबविया के उमूम से उन पर उश्र ज़कात का वजूब साबित होता है और इसके मुखालिफ हदीसें ज़ईफ़ और नाकाबिल इस्तिदलाल हैं। इसलिए हिंदुस्तान में जो ज़मीनें काश्त की जाती हैं और हम लोग भी इसमें काश्त करते हैं तो उसमें ज़कात देनी चाहिए, उश्र निकालना चाहिए। क्या जिस तरह रहट और ऊंट वगैरह के ज़रिया सैराब करने की वजह से खेत की पैदावार में उश्र के बजाय निस्फ़े उश्र वाजिब होगा, उसी तरह लगान और पोत देने की वजह से भी उश्र के बजाय निस्फ़े उश्र वाजिब होगा। ये पोत का मतलब वही है जो टैक्स के तौर पर दिया जाता है, उसको बाज़ इलाकों में पोत कहते हैं। यूपी के इलाके में कहते हैं नहीं, पोत और लगान देने की वजह से उश्र के बजाय निस्फ़े उश्र वाजिब नहीं होगा। शरीयत ने सिर्फ सैराबी और गैर सैराबी ज़मीनों की पैदावार में फ़र्क किया है और पोत और लगान की वजह से तख़फ़ीफ़ नहीं की है। सिर्फ सैराबी पर जो खर्च आता है उसकी वजह से निस्फ़े उश्र किया गया है, लेकिन दूसरे जितने भी खर्च आते हैं, इसे हमने अपने एक उसमें दर्स में बयान किया है
چاہے جیسے خرچ آتے ہیں، چاہے جتنے زیادہ آتے ہیں، کسی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آج کل اچھی پیداوار کے لیے سینچائی کے علاوہ کھاد، نکائی کا مطلب یہ ہے کہ کھیت میں جو گھاس وغیرہ نکل آتی ہے، کانٹے بھی نکل آتے ہیں، تو اور بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں تو کافی مزدوری دے کر کے کسانوں کو لگایا جاتا ہے، یا کہ اس پر دوا چھڑکی جاتی ہے جس سے وہ جل جاتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں۔ یہ نکائی اصلاً وہی مزدوروں کے ذریعہ سے اسے اکھاڑ کر کے کھیت کو صاف کروانا ہے۔ آج کل اچھی پیداوار کے لیے سینچائی کے علاوہ کھاد، نکائی اور مختلف قسم کی دواؤں کا چھڑکاؤ وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے، جن پر سینچائی سے زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ تو کیا ان کی وجہ سے بھی ہم عشر کے بجائے نصف عشر نکال سکتے ہیں، یا ان کے اخراجات کو پیداوار سے وضع کرنے کے بجائے کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے عشر نکالیں؟ کہتے ہیں سینچائی کے علاوہ کھاد اور دواؤں وغیرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نہ تو آپ عشر کے بجائے نصف عشر نکال سکتے ہیں، اور نہ ان کے اخراجات کو پیداوار سے وضع کرنے کے بعد عشر نکالنے کی اجازت ہے۔ عہد نبوی و صحابہ میں بھی کھیتوں اور باغات پر سینچائی کے علاوہ گوڑائی، جوتائی اور نکائی وغیرہ کے اخراجات تھے، مگر ان کی وجہ سے عشر و زکوٰۃ میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی۔ اس واسطے آج بھی ان کے اخراجات کی وجہ سے اس میں تخفیف نہیں ہوگی، نیز ان کی وجہ سے پیداوار میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے۔ جو کھیت سرکاری نہر سے سیراب کیے جاتے ہیں اور ان کے پانی کا سرکار کو محصول دینا پڑتا ہے، کیا اس کی پیداوار میں عشر ہے یا نصف عشر ہے؟ کہتے ہیں ایسے کھیتوں کی پیداوار میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ رہٹ وغیرہ سے سینچائی کی طرح اس پر بھی زائد خرچ آتا ہے۔ بٹائی پر دیے گئے کھیت کی مجموعی پیداوار پر عشر ہے۔ جو کھیت بٹائی پر دی گئی ہے تو اس کی جو پیداوار ہوگی اس پوری پیداوار کو دیکھیں گے کہ یہ نصاب تک پہنچا ہے یا نہیں۔ جب مجموعی پیداوار نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں عشر نکال دینا ہی احوط ہے۔ یہاں احوط کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی زیادہ مناسب ہے اور اس میں اختلاف بھی ہوگا۔ آیت کریمہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم سے پہلے اور مجموعی پیداوار کا عشر نکالنا چاہیے۔ نیز دو آدمیوں کی مشترکہ بکریاں اگر نصاب کو پہنچ گئی ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے، اگرچہ ہر ایک کا حصہ الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچتا۔ اسی طرح بٹائی والے کھیت کے غلہ کا بھی ہوگا۔ واللہ سبحانہ عالم وعلمہ اتم۔ اور اس کے بعد میں جو سوال ہے کہ ہمارے والدین نے ایک زمین کی پیداوار کو ایک مدرسہ کے لیے وقف کیا تھا، تو کیا اس کی پیداوار میں بھی عشر ہے؟ کہتے ہیں اس کی پیداوار میں عشر نہیں، کیونکہ اس کی تمام پیداوار فی سبیل اللہ ہے۔ کیا گیہوں اور جو کو ملا کر نصاب پورا کریں گے؟ راجح قول کے مطابق گیہوں اور جو دو الگ الگ جنس کے غلے ہیں، اس واسطے ان پر زکوٰۃ و عشر کے وجوب کے لیے ہر ایک کا الگ الگ نصاب کو پہنچنا شرط ہے۔ دونوں کو ملا کر نصاب پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مکئی، باجرہ، چنا، مٹر، مسور اور جوار وغیرہ الگ الگ جنس کے غلے ہیں۔ نصاب مکمل کرنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا،
बल्कि हर एक का अलग अलग निसाब होगा। अलबत्ता गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं और किसी के पास कई किस्म के गेहूं हैं, तो सारे किस्म के गेहूं को मिलाकर देखेंगे। अगर वो निसाब को पहुंच गया तो उश्र या निस्वे उश्र देना पड़ेगा, वरना नहीं। इसी तरह धान की कई किस्में हैं, इन किस्मों को भी एक ही जिन्स मानेंगे और सबको मिलाकर निसाब देखेंगे। सबको मिलाने से अगर निसाब पूरा हो गया तो ज़कात देनी पड़ेगी, वरना नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।